I'll keep it same Hindi and English, na? Yes, sir. Mix of both. Yes. Hello everyone, welcome to IIFL webinars. In today's session, we have Mr. Sanjeev Bhasin, the market guru of stock markets, who will tell us how will the markets turn around in the month of July 2021. नमस्कार दोस्तों, मार्केट्स का जुलाई के लिए रुख जानने के लिए आज ये वेबिनार एक्सक्लूसिवली IIFL क्लाइंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। आज मिस्टर संजीव भसीन जो कि मार्केट गुरु कहलाते हैं, वो हमें बताएंगे कि जुलाई 2021 में मार्केट्स का रुख कैसा रहेगा। Sir, let us start. Okay, give it another minute or so. Let more people join in, and we'll start. Give it video. Sure. Okay, Sweta, should we start? Yes, sir. Okay. So we are live? Yes. हाँ, नमस्कार सबको बहुत बहुत नमस्ते और वी होप एंड प्रे आप सब सुरक्षित हैं, सब वेल हैं और सब वैक्सीनेटेड हैं। सबसे बड़ी बात है, अपने आप को वैक्सीनेशन लगाइए, अपने परिवार को, और अगर आप टीवी देख रहे हैं तो हमसे जुड़िए। IIFL सिक्योरिटीज इसी काम में लगा हुआ है कि आप लोगों का धन भी बने और आपकी सेहत भी बने। वी आर इन द प्रोसेस दैट यू मेक मनी ऑल्सो, स्टे इन्वेस्टेड and also stay well. Your being well is a very, very big long-term objective for all of us. So as a family, we all think and we move on that. और आपने देखा है कि IIFL has been one of the fastest growing digital platforms. और जो आपकी queries है, we have tried to take it right from the from the front. And in this 1.5 years, touchwood, जैसे आप मेरे से जुड़े और IIFL सिक्योरिटी से, तो हमने एक अच्छी मुहिम चलाई जहां से बाजार के साथ आप लोगों ने धन कमाया है। एंड वी होप एंड प्रे टू गॉड ये चलते रहे। अब आपको साथ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आज बाजार बंद होते हुए आखिरी आधे घंटे में बहुत ही किसे कहते हैं आशाजनक बंद हुआ है और सब लोग अभी चिंतित हैं कि क्या होएगा जुलाई में। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा। मैं सोचता हूं, लिख के लीजिए कि जुलाई अगले हफ्ते से ऐसा महीना होएगा कि आपने देखा ही नहीं, और सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई तो बहुत ही रंग लिखाएगा। मीनिंग वी आर गोइंग टू न्यू हाइज, और न्यू हाइज से भी ज्यादा स्टॉक्स और मिड कैप में जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म होएगा। तो मुझे 17, 18, 20 तारीख तक तो बाजार बहुत अच्छा दिख रहा है और वो रहेगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि अगस्त में चिंताजनक बाजार रहेगा, लेकिन अभी तो आप अगस्त का छोड़िए, अभी जुलाई का स्वाद लीजिए और बने रहिए। ये कुछ दिन की वॉलेटिलिटी इज मोर टू डू विद द ETF आउटफ्लोज, और ये हमने देखा है कि इमर्जिंग मार्केट्स हैव बीन अंडर प्रेशर।
तो हम आपको सारी टिप्पणी भी देंगे, आपको सलाह भी देंगे, लेकिन बने रहिए क्योंकि इन्वेस्टेड होने में ही आप सबको फायदा है. The only way you can create wealth is by staying invested. There is a myth that I'll buy it on decline and sell, then you become a trader, and the trader never makes money. Trader only makes money if he goes on both directions, and he has to be present in the market. So we'll take these, we'll take the cues, we'll show you this PDF, and then we'll take the question answers and tell you more about the market. So Sweta, we can start. Now we are saying Nifty is hitting new highs in July. How well are you positioned? आपकी position क्या है? Mid caps है, large caps है, IT है, pharma है. Where are you? So let's start the PDF and then we'll take it from there. तो देखिए 85 lakh vaccines were given on one day, that is last Monday. Now someone told me 85 lakh is the full entire population of Switzerland. So इसका मतलब एक दिन में आपने पूरे स्विट्जरलैंड को वैक्सीन लगा दी, which is a very big positive. So aside from the negatives and the journalists and the negative, I think Modi ji and the entire administration ने बहुत बढ़िया काम किया है. It is not easy to handle 130 crore people, and that also at the peak of the epidemic, and now with summer on the anvil. So I think it's a very big positive that vaccine is getting stronger. Aside from Covishield and Covaxin, you have Spectrum, you have the Sputnik, and now you have Moderna also coming. So I think in the next 3 months, 3 महीने बाद सबको वैक्सीन होने की बहुत अच्छी संभावना होगी, और मुझे लगता है जो एप्रीहेंशन थी वो खत्म हो जाएगी. इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन लगने के बावजूद आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन वो मार्जिनलाइज है. हॉस्पिटलाइजेशन या ऐसी आफत आना नहीं होएगा, और हम सब सीख चुके हैं कि इट इज बेटर टू बी वाइज एंड गेट द वैक्सीनेशन, एंड फॉर एवरी पर्सन इन योर फैमिली. दूसरी बात, गवर्नमेंट टेकिंग रिलीफ मेजर्स टू कर्ब द इम्पैक्ट ऑफ कोविड. उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हैंडल किया है, पर्टिकुलरली पहले महाराष्ट्र, फिर दिल्ली एंड अ लॉट ऑफ द अदर स्टेट्स. आई थिंक द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डन अ रिमार्केबल जॉब, और सरकार ने जो जो उनके से हुआ है बहुत किया. आरबीआई ने बहुत अकोमोडेटिव स्टांस लिया है, उन्होंने पैकेज भी दिया है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स लो रखे हैं, साथ में एमएसएमईज और स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को बहुत रियायत दी है. रूरल इनकम और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में बढ़ोतरी हुई है. हमारे को उम्मीद है बरसात बहुत अच्छी होगी, और जो आपका सोइंग सीजन है दैट विल गो ऑफ वेरी वेल. उस कारण से वी थिंक 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स विल कम आउट विद वेरी गुड नंबर्स ओवर द नेक्स्ट 2-3 quarters. There is one thing I must observe, that in the first wave, rural India was unaffected. लेकिन इस बारी rural India has got affected, which is why markets were, trying to discount के क्या है. But जो अभी तक हमारे को views और reading material से मिला है, it tells us that the second wave has not been as drastic as was being made out. यहाँ पे तो ऐसे आदमी आ जाते हैं जो आपको बोलेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. शेयर बाजार डिस्काउंट मैकेनिज्म है. Don't get lured by people who tell you there's a big crash. When it comes, we will see. Right now, the only way you can make money is by being invested. ये एक मिथ है. आप में से कई सोचेंगे कि 14,000 आ जाए तो मैं दिल खोल के ले लूंगा. मैं आपको फिर रीइटरेट करता हूं, 14,000 अगर आ गया तो सब भाग जाएंगे, किसी से लिया नहीं जाएगा. शेयर बाजार has very, very good principles, but being invested is one of them, which is the primary and only objective. अगर आपके पास शेयर हैं तभी आप फायदा उठाएंगे. उदाहरण के लिए, अगर आज आपके पास सोना है तो सोने का भाव 52,000 या 50,000 है. आपने तो 4, 5, 10,000 भी नहीं देखा होता अगर ये आपके घर वालों ने या लेडीज ने या लक्ष्मी ने बचा के नहीं रखा होता. तो द ओनली वे यू कैन राइड एन एसेट बूम इज बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड इन दैट, whether it's property, fixed income, gold, or real estate or equities. Improving second half, FDI investment is a big boost. जो investment आपको दिख रही है कि right across the board, government is giving across the board lot of FDI approvals for setting up base, manufacturing, PLI, और ये सब industry को बढ़ावा है. Jobs are being created and industry is getting a much needed stimulus from the government, and foreign investment is definitely making a beeline. Next. अब आप देखिए तेल का भाव is hitting a 3-year high, और तेल का राइज करना is negative for India because 75% of our import bill is oil. और
ऑयल के बढ़ने से क्रूड पे और रुपी पे और डॉलर के साथ हमारे को इफेक्ट पड़ता है। बट मेरे को 30 साल हो गए, क्रूड इज अ बैरोमीटर ऑफ ग्रोथ। अगर ग्रोथ होगी तभी क्रूड बढ़ता है, और ग्रोथ ये बता रही है कि जैसे जैसे रीओपनिंग होगी, देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज transportation across the board, whether it's aviation, trucks, scooters, air two wheelers, ये सब robust होंगी, और इस कारण से crude is headed higher. तो we have to live with that. अब कोई आपको ये बताए कि crude, तो और आपको टिप्पणी दे दूं कि क्रूड बढ़ने से पहली बारी मैंने बहुत साल में देखा कि HP, IOC and BPCL are hitting new highs because government has given them free marketing, freedom of pricing, which is very positive. However, in the longer run, क्रूड अगर यहाँ रहता है तो इन्फ्लेशनरी है, और वो आपके जो एंड यूज है डिस्क्रिशनरी पे, उस पर प्रेशर डालेगा. बट इन अ बुल मार्केट यू विल हैव 2-3 नेगेटिव्स आल्सो. हर चीज पॉजिटिव नहीं हो सकती. क्रूड के सामने देखिए, सोने में अच्छी गिरावट आई है, और सोने में एक तरह से वीकनेस आई, बिकॉज ग्लोबली अब ये सर्किट बन चुका है कि रिस्क ऑन ट्रेड इज बैक, और रिस्क ऑन ट्रेड जब होएगा, then definitely gold will not find its place. Gold will be, gold has been the only caveat कि रशिया एंड चाइना अपने कुछ रिजर्व्स को डॉलर बेस्ड एसेट से गोल्ड में कर रहा है, which in the longer term is positive for them, but it also means कि गोल्ड का प्राइस जो बढ़ा है, it's more to do with that, not because of any demand supply. So both these things move in parallel. Next, markets are finding pressure at 15,900. 2 बारी 3 बारी हुआ है और वापस आ गए. लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगले महीने या अगले हफ्ते से शुरुआत होगी, और 16,000 जुलाई में जरूर आया, न्यू हाइज आएंगे. 16,200 से 16,300 तक निफ्टी की जाने की उम्मीद है. अब वेदर इट्स अ वन ऑफ और नॉट, वो टाइम बताएगा, बिकॉज अभी थोड़ी एप्रीहेंशन है ऑन रिजल्ट्स, ऑन इन्फ्लेशन एंड ऑन बॉन्ड यील्ड्स. साथ में यूएस डॉलर has started to get stronger, which is not very good for emerging markets. इस कारण से आपने देखा है in the last week 10 days, as the US dollar hit 92.40, emerging markets like China, Brazil, India, Russia all have been seeing profit booking over there because money goes back into develop. But ये एक short term phenomena है. अब 15,900 के बाद 16,200 से 300 और 37,500 से 38,000 बैंक निफ्टी पे मुझे दिखता है. जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि जून में एक ऐसा पीरियड आएगा जब मार्केट बहुत जोर से घटेगी और लेने का मौका होएगा. तो आपको याद है 3-4 दिन में फॉल आया जहां 15,450 टेस्ट हुआ. अब आपको बता दूं 15,450 के नीचे क्लोज कहीं भी आए, दैट इज योर मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस. उसके नीचे ट्रेडिंग पोजीशन सब कट होंगी. अभी मार्केट इज गायरेटिंग. नेक्स्ट वीक वी शुड स्टार्ट टू सी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. I can also tell you second half of July may be the best we've seen in the last 4 months. So I am very, very optimistic. July will be a very good month, and your being invested only will create wealth. Next, US dollar seeing strength. Inflation has risen to 5%. अब ये inflation जो है 30 साल के हाई पे आई है. It has never reached 5% in the US, but ये भी बता रहा है कि return is back, and demand being so strong because of the lockdown, there is reopening everywhere. 1.5 साल से लोगों ने पैसा घर में बचाया है और वो खर्चने के लिए उतावले हो रहे हैं. जैसे जैसे रीओपनिंग, मैं आपको फिर लिख के देता हूं, 1 साल बाद आपको प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी, होटल में कमरा नहीं मिलेगा. And people will relive that like they've never, because they've seen enough of this panic. They are saying we don't want another wave, so we want to relive our lives. And I'm telling you, in 1 year, consumption is going to go through the roof. That is what the market is anticipating and pricing in. Locally, second wave impact is much less than anticipated. Reopening will be a big trigger as vaccine gets widespread. Earnings and guidance are very positive in large earnings. देखिए, सबसे बड़ा चीज तो शेयर बाजार चलाता है is earnings. And I think earnings have been far better than all estimates. Whether it was Bosch, whether it's SBI, whether it's Motherson Sumi, whether it's State Bank, or whether it's some of the metals like Tata Steel and SAIL, they have come out with numbers never witnessed. Or abhi bhi they are saying that FY 21 to 22 you could see a 40% jump in earnings. अब वो सब अगर आएगा तो then the pricing of stocks as a price multiple will definitely rise. इस कारण से timing will be difficult, but being invested is the only way. मार्केट सस्ती नहीं है, ना कोई इतने चीप लेवल्स पे है. दे आर एट एलिवेट लेवल्स, बट एलिवेटेड लेवल्स गैदर स्ट्रेंथ.
ये सारी राइज जो है 16,000 लास्ट वीक हो जाता अगर रिलायंस एजीएम के बाद 6% नहीं करेक्ट करता। और अब मैं आपको कह रहा हूं कि रिलायंस ही एजीएम के ये जो जुलाई में जो लेके जाएगा 2300 2350 तो 16,000 को पार वही कराएगा, क्योंकि longer term Reliance has come out with a very bullish announcement. Green energy and the reinvestment in the petrochemical cycle is a very big positive, where they have tied up with Saudi Arabia and ADNOC. देखिए रिलायंस तो 30 साल का सोचता है और 130 करोड़ का, तभी उनमें इतनी क्षमता है कि वो प्लानिंग करते हैं आगे की अपनी रणनीति का। और मार्केट डिसअपॉइंट हुई बिकॉज कैपेक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो मीन करता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी डाइल्यूटेड, लेकिन ये एक पासिंग फेज है। रिलायंस ऑलवेज थिंक्स ऑफ द नेक्स्ट 5, 10, 15 years, hence you should use a SIP or do all declines on Reliance to be a buy. 2075-80 is a good base. I see a test of 2350 coming in the month of July. Next, निफ्टी मिड कैप इज अगेन आउट परफॉर्मिंग, और मिड कैप्स में आपको रंग दिख ही रहा है कैसे हो रहा है। और स्टॉक सेटिंग न्यू हाई, चाहे वो डिसइन्वेक्ट के हो, दीपक नाइट्रेट हो, मिड कैप फार्मा हो, मिड कैप आईटी हो, मिड कैप बैंक्स हो। आपने कितनों ने साउथ इंडिया बैंक और जेएनके को देखा है? इट इज गिवन 50-50, 100 and 300% रिटर्न। 14 वाला जेएनके बैंक 45 रुपए हो गया और 8 रुपए वाला 14 रुपए हो गया साउथ इंडिया बैंक। और ये सबको आपको लिख के दिया काहे के कहा। तो मिड कैप्स में तो अभी रंगत है, ये तो 3 साल के लिए मिड कैप चलेंगे। निफ्टी की स्ट्रेंथ इज एविडेंट, बट रिलायंस की वजह से थोड़ा कम है, बट आईटी इज आउट परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ अ वीकर रूपी। IT and pharma very good conduits for export, because 70% of their business और most of the business of IT और pharma का तो काफी कुछ वहां से आता है। साथ में जेनरिक प्राइसिंग इज बैक। तो आपने देखा है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डॉक्टर लाल पाथलैब्स, द होल बैंड ऑफ जेनरिक एंड पैथोलॉजी ऑल डूइंग वेरी वेल। थायरोकेयर में तो डील भी अनाउंस हो गई, which tells us that at elevated level there are enough people who want to put their money and businesses are seeing a lot of churn, जो लॉन्गर टर्म बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब बिजनेस इज रोबस्ट, और जो न्यू बिजनेसेस आ रहे हैं, किसने 3 साल पहले बोला था फार्मा चलेगा, अब देखिए फार्मा में क्या रंगत आई है। तो आई थिंक सेक्टोरल रोटेशन हो रही है, और अभी आपने देखा है मेटल्स में और आईटी में और फार्मा में फिर बैंक आई है, और बैंक्स में थोड़ी वीकनेस जस्ट बिकॉज yields have gone up, but I think banks will be robust because they've already raised capital। और जो क्रेडिट साइकिल है, particularly in high infrastructures like power, steel, cement, वो बहुत रोबस्ट है। आपने देखा है पावर स्टॉक्स have moved like never before in the last 5 years। the biggest underdogs like NTPC, Power Grid, coal, all have moved very sweetly, और पावर में तो अभी शुरुआत है। नेक्स्ट, तो देखिए वैक्सीनेटेड एज ऑन 28 जून ऑलमोस्ट 33.5 करोड़ हो गए। वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड द मैक्सिमम, बट अभी वी नीड टाइम। और मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि अगले 3 महीने बाद दिस नंबर कैन बी मे बी 50% मोर। इफ वी गेट 45%, इट्स ऑलमोस्ट almost 60%, 45% of our workable population, which is a very big positive. So I think vaccine and the policy and the methodology is very fast। आप सब देख ही रहे हैं कि आजकल वैक्सीनेशन का दबाव सब जगह है और बहुत आसानी से अब हो रही है। तो इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द मोदी रेजिम। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट का जो अपना टारगेट है एम्बिशियस है, बट वो जरूर पूरा होएगा। डाइवेस्टमेंट के लिए उन्होंने बीपीसीएल, एयर इंडिया, कॉनकॉर शॉर्टलिस्ट कर दिया। एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, और अब उन्होंने बीईएमएल वगैरह जैसी कंपनियों पे बातचीत शुरू कर दी। तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है। पहली बारी इतने साल में हमने देखा है कि पीएसयू से लॉक स्टॉक एंड बैरल डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इज सेइंग वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, our job is to run the administration, let the businesses be taken and privatized। they have already given you a list of PSU banks which were under immense pressure because of NPAs,
उनकी डाइवेस्टमेंट इन होल, बैंक्स लाइक सेंट्रल बैंक, IOB, which is a very big positive. ये इनमें से 3-4 भी हो गए, it will set the cat amongst the pigeons. गवर्नमेंट ने सूटी का स्टेक अपना एक्सिस बैंक से बेचा, वो पैसा रियलाइज किया है। और जैसे आपको कहा, देयर इज अ होल होस्ट ऑफ स्टॉक्स, BML इंक्लूडेड, जहां डिसइन्वेस्टमेंट इज इन होल एसेट्स आर बीइंग सोल्ड। इंक्रीज्ड एलोकेशन टुवर्ड्स PSU, वो PSUs के 4 बड़े सेंटर्स बना रहे हैं, बाकियों को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो आपकी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और स्ट्रेंथन किया गया है। पब्लिक हेल्थ केयर, ये एक बहुत बड़ी बात है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब होने को है, बिकॉज ये पैंडेमिक ने ये बता दिया है कि वी आर वेरी वेरी अंडर इन्वेस्टेड एज फार एज हेल्थ केयर गोज, और हेल्थ केयर इन द रूरल एरियाज वाज टोटली एब्सिमल। तो ये चीजें बहुत ही पॉजिटिव है, लॉन्गर टर्म बहुत पॉजिटिव। इस कारण से फार्मा इज गोइंग टू बी अ मेन स्टे फॉर द नेक्स्ट मेनी ईयर्स। सो स्टॉक्स लाइक सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर लाल, आप जिसका भी बास्केट ले, मैं अभी भी सजेस्ट करता हूं SBI फार्मा फंड या निपॉन फार्मा फंड आर वेरी गुड फार्मा फंड्स, उनमें इन्वेस्ट कीजिए, ETF लीजिए, बिकॉज एन ETF गिव्स यू अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स एंड लेट्स यू स्टे इन्वेस्टेड। दैट शुड डू वेरी वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट 2, 3, 5 years, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं। नेक्स्ट, हेल्थ केयर के लिए और पैसा, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। उन्होंने मिड कैप स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के लिए बहुत रियायत दी है। इनफैक्ट उन्होंने क्रेडिट गारंटी से आपके NPS का तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होने के लिए कह दिया है। कोविड इफेक्टर सेक्टर्स को 50,000 करोड़ एंड सो ऑन। तो ये सब बता रहा है कि सरकार अपना चुपचाप से जब आता है मौका वो काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको ये भी बता दिया है कि कॉर्पोरेट इंडिया इज परफॉर्म ब्रिलियंटली, इसलिए GST कलेक्शंस आर एट प्री कोविड लेवल्स, और 1 महीना नहीं, लगातार 4-6 महीने से ये हो रहा है, विच अगेन टेल्स यू कि गवर्नमेंट की किटी पे इतना प्रेशर नहीं है। डिस्पाइट वीकनेस इन द रूपी एंड ऑयल, गवर्नमेंट इज वेरी हैप्पी कि रुपया ये 73 से 75 के बैंड में रहे, बिकॉज वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता है और साथ में जिसको REER रियल वैल्यू ऑफ द रूपी उसको सामने लाती है। So I think this is a very present, reasonable zone. In the short run, we know that stocks like IT and pharma will be better performers because of this, weakness in the rupee. But I think it is short term. India ke reserves are at an all-time high, and the type of money which is coming in the shape of FDI will be very, very long term and stronger. Next. तो देखिए, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल, PSU बैंक्स, मेटल्स, ये सारे बहुत ही रोबस्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज आपको पता है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आर रेटिंग ऑल टाइम हाइज, क्योंकि रोबस्टनेस इन लेंडिंग इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये कंपनीज ने अपने NPS को कभी फास्टर नहीं किया। दे कट देयर लॉसेस, दे आर वेरी वेरी वेल एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड, और आगे जाते हुए भी मुझे लगता है PSUs में बहुत स्ट्रांग रिबाउंड किया। आपने देखा ही है हाउ SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ऑल ऑफ देम हैव रिएक्टेड, और ये सब अभी तो शुरुआत है। स्टेट बैंक का भाव 650 का अगर होना है तो मेरे हिसाब से बाकी PSUs भी पार्टिसिपेट करेंगी, बिकॉज क्रेडिट साइकिल इज स्ट्रांग। देखिए, इनमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्या होता था, इट यूज्ड टू बी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, स्टील, ये सब नेगेटिव होते थे। नाउ दे आर ऑल, इनफैक्ट steel industries debt is at the lowest because they are repaying their debt. So I think this is a very big positive. अब आपको कुछ लिस्ट ऑफ शेयर्स बता रहे हैं, इनमें बने रहिए। These are some high beta stocks. उसके अलावा भी मैं स्टॉक्स की बात करूंगा, but we'll take it from there. Yes, next. तो देखिए, अभी भी मैं प्रॉपर्टी पे बहुत बुलिश हूँ। रियल एस्टेट, मॉर्गेज लेंडर्स, मॉर्गेज बैंक्स, these will do extremely well. तो गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और मैं आपको कहता हूं गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF, NBCC विल बी द बेस्ट क्रिएटर्स ऑफ वेल्थ इन द नेक्स्ट 2 years. सिंपल रीजन है, अगर सोने का भाव 51-52 हजार है और इंडेक्स भी 52 हजार है, मनी विल चेस रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट में कोई वीकनेस नहीं है। 8 महीने पहले जो भाव से वहां से 25% एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, एंड दैट ऑल्सो इन बिग टाउनशिप्स। So real estate is going to be the key which will lead the banks. साथ में banks की lending का cycle उनके साथ चलता है। Mortgage companies like HDFC are seeing the best robust business, and
your infrastructure related to them, construction, material company, steel, cement, जितना जितना उसमें लागत होगी, that will all do well. Bharti Airtel is a very, very undervalued stock. Mr. Mittal himself has said that it is shocking that ARPUs are where they are. उन्होंने कहा अगर आप $5 भी लेते हैं तो $350 है, और कोई कहीं भी विदेश में $8 या $10 से कम नहीं है, तो वो कहते हैं $5 तो मिनिमम होना चाहिए. अब ऑफ कोर्स ये एक मच वांटेड चेंज है, और हमें पता है वोडाफोन इज इन द रेल्म ऑफ बीइंग totally default, but it is still managing, and we think the government will intervene. But I think ARPUs are only headed higher, और भारती ने अपने आप को डाइवर्सिफाई वेरी अच्छा किया है, तो ₹520 पे इट हैज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड. मैं अभी भी सोचता हूँ 650 का भाव इस साल में जरूर आएगा. Equitas has been one of my better favorites. The management is very bullish. They have cleansed their book. They are very clean on their small bank, and in the NBFC space, that's a very good small lender. RBL Bank again continues to be the prima donna in the sense trades at less than 1 time price to book. Management is extremely competent, और मुझे लगता है मिड कैप बैंक्स में दिस विल बी एन आउट परफॉर्मर. 270 और 350 का टारगेट मेरा है. AB Capital, a new entrant. AB Capital is the holding company of the insurance, the mutual fund, the AB Money and the asset management company. इतना कुछ मिल रहा है आपको, और वैल्यूएशन बिल्कुल रीजनेबल से भी कम है. 115-20 में इसका भाव ₹250 होना चाहिए. So that will be one of my top picks from the house of Birlas. DCB Bank unquestionably very well adequated and raring to go. ₹150 का भाव. Bosch is going to take my breath away. 20,000 का भाव आपको अगले 2 साल में, और अगर आप इसको 2 साल से ज्यादा देखें तो 25,000 का भाव भी हो जाए, because it is a German giant which is saying उसके क्वार्टरली नंबर्स वर द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव सीन इन OEMs. और मुझे लगता है जैसे जैसे ऑटोज में चाल आएगी, Bosch ग्लोबली विल डू वेल, इन इंडिया इट विल आउट परफॉर्म. गोदरेज कंज्यूमर मैं ₹750 से कह रहा हूं, इसका भाव 1200 दिखता है. दे हैव ऑलरेडी गॉट इन द बेस्ट फ्रॉम लीवर, एंड आई थिंक नाउ देयर न्यू गेम प्लान इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड. जी एंटरटेनमेंट इज अ नो ब्रेनर. 350 का भाव दिखता है मुझे विद इन 1.5 years. इन द नंबर्स दे आर एक्सट्रीमली गुड. G came down only because of leverage by the promoter, nothing to do with the company. Company is a very well run machine, one of the lowest cost entertainment companies which has a bouquet of everything. और NBCC में आपको कह चुका हूं, आई थिंक उनके नंबर्स थोड़े से आपको स्टार्टल करते हैं, लेकिन 3,000 करोड़ कैश ऑन बैलेंस है, और 3,000 की वो प्रोविजनिंग कर चुके हैं फॉर सम ऑफ द सब्सिडरीज एंड द रिसीवेबल्स. देखिए NBCC हैज एन अक्रॉस द पैन इंडिया जो है उनके लागत, तो कईयों में इंपेयरमेंट था, कईयों में लागत है, कईयों में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है. उन्होंने सब प्रोविजनिंग की है. 180 करोड़ की इक्विटी पे मैं आपको बोलता हूँ ₹30 अर्निंग आएगी इसकी अगले 2-3 साल में, और ये प्रोविजनिंग वापस आ गई तो ₹100 का भाव कोई बड़ी बात नहीं है. इसके अलावा लेट मी नेक्स्ट. So we'll take this now. We've given you this. Now we are going to go to the what we think will be the market. Emerging markets have done very well. Have been under pressure because of the strong rupee, a strong dollar. We think the next wave again will be on the emerging markets, and that could make July a very good month. Results आपको बताया बहुत बढ़िया रहे हैं. Earnings can rise 40% in the next calendar year, next financial year. बैंक निफ्टी पे आपको बताया है 38,000, 16,300 और निफ्टी. अब आपको कुछ शेयरों के नाम बता रहा हूं. ICICI बैंक, अगर आप लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाते हैं, ICICI बैंक, HDFC, SBI लाइफ एंड रिलायंस, ये 5 नेम जरूर रखिए. गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज कंज्यूमर मैं आपको बोल चुका हूं, DLF, बिकॉज एज अ थीम मैं बहुत बुलिश हूं रियल एस्टेट पे, और आप डायरेक्टली खेल सकते हैं फ्रॉम द बिगेस्ट प्लेयर्स, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टी एंड DLF. मारुति आई थिंक विल, मैं पहले भी ₹6800 से कह रहा हूं, मारुति का भाव 10,000 दिखता है मुझे अगले साल तक, तो मारुति वुड बी माय टॉप पिक देयर. टाटा स्टील एंड हिंडाल्को मेक अप द मेटल्स बास्केट. फार्मा में आपको कहा है सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, लेकिन उससे भी बेटर है अगर आप SBI फार्मा या निपॉन फार्मा फंड लीजिए. आई थिंक अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा. मेरा फिर भी आपको ये कहना है कि बने रहिए. फिर दावे से कहता हूं जुलाई में न्यू हाई आएगा,
जुलाई का मंथ बहुत बढ़िया रहेगा, सेकेंड हाफ पॉजिटिवली, वही अगस्त थोड़ा नहीं काफी चिंताजनक रहेगा, लेकिन जुलाई के पहले मजे लीजिए, बने रहिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम ट्रेडिंग की कॉल दे रहे हैं, जयेश बनुशाली और रोशन अब आपको ऑप्शंस में भी काफी स्ट्रेटेजी देंगे। तो IIFL इज अ कंप्लीट ब्रोकिंग हाउस with all other things coming to you. Be invested, stay safe, and look for making much more money. Our derivatives calls, our equity falls. साथ में मैं बताऊं, हमारे small case ने, Shweta will tell you, has outperformed the index. We were up 61% on our small case portfolio from Diwali against 23% on the Nifty. तो जो आपकी डिजायर या आपकी जरूरत है उसको सब पूरा करने के लिए IIFL is there. मैं अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा एंड आई विल गिव इट टू श्वेता। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड लुक फॉरवर्ड टू न्यू हाइज। सो कॉल मी और मैसेज मी व्हेन द न्यू हाई कम्स वेयर एवरीवन इज डाउटिंग इट। थैंक यू। So as संजीव सर मेंशन, तो आप हमारे IIFL सिक्योरिटीज के स्मॉल केसेस में निवेश कर सकते हैं। संजीव सर का बताया हुआ दिवाली पिक 2020 का स्मॉल केस ने 60% से ऊपर रिटर्न दिया है, जहां निफ्टी ने 17% का रिटर्न दिया है। और ऐसे ही कई काफी अच्छे स्मॉल केसेस हम टाइम टू टाइम लेके आते हैं, जो कि संजीव सर से और जयेश भानुशाली के थ्रू बनाए जाते हैं स्पेशली आपके लिए। तो आप IIFL के साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि IIFL में डीमैट अकाउंट खोलने से आपको कितना अच्छा रिसर्च और कितना अच्छा मार्केट के लिए आउटलुक मिलता है। अब मैं क्वेश्चंस लेती हूँ। सर, इज दिस द राइट टाइम टू बुक प्रॉफिट्स फ्रॉम इक्विटीज एंड पे सम लायबिलिटीज लाइक होम लोन्स? There is no better time. If you have a liability to pay, that is not bad, and 16,000 is a fair level. There is no question about that. But like I said, if you can find an alternate or raise capital somewhere, then equity still has a very good, ये beginning of a big churn है. And what we are saying, this is the beginning of a cycle of infrastructure and a capex cycle which can last for the next 3 years. But there is no better time to repay your loan or reduce your debt. शुगर सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? Sugar and metals have taken my breath away, but I cannot chase it at this price. I think a large part of the ethanol pricing is already in. अगर crude में कहीं भी weakness आई, then ethanol and sugar can take a back seat. Government is very firm that ethanol is going to be the new, catalyst. So till the time it is there. But this is a cyclical industry. Remember, large part of the rally, 3, 4, 5 baggers have taken place. I still think EID Parry, Balrampur Chini and DCM Shriram are 3 of the top names. तो अगर बन रहे हैं तो be with the top leaders. सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर पे आपका क्या सुझाव है और आने वाले 2-3 सालों के लिए मल्टी बैगर्स कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं? नहीं, मल्टी बैगर्स तो मुझे ऐसे पता नहीं, बट मैं आपको अभी भी बोलता हूं, टाटा मोटर और महिंद्रा सबसे पुरानी कंपनियां हैं, सबसे फर्स्ट लॉन्च है और सबसे ज्यादा उनका रुझान भी इस तरफ है। महिंद्रा 750 पौने 800 पे इज अ स्क्रीम, आपको 1200 का भाव दिख जाएगा 2 साल में। तो महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स आर द बेस्ट conduit. You can add an Ashok Leyland, but EVs are here, but it will take 3-5 years. और companies are changing their module, they are getting used to that. But जब तक हमारे यहाँ ये full fledged रहेगा, उसमें 4-5 साल लग सकते हैं। Futuristic investing में मैंने बताया, be with the leaders. I think Tata Motor, Mahindra, Ashok Leyland will fit the bill. Sir, what makes you bullish on the PSU banks given that they are undervalued? Oh, we have seen the worst of the cycles. कहाँ they were trading at 0.25, 0.3. अभी भी they are trading at below book. तो I still think PSUs पे ज्यादा pessimism था. गवर्नमेंट ने पहले तो उनकी जो ETF डिसइन्वेस्टमेंट है वो बंद कर दी, और साथ में जो उनको क्रेडिट कॉस्ट मिली है और इम्प्रूवमेंट इन द साइकिल ऑफ इंडस्ट्री हैज डन वेरी वेल फॉर देम. देयर NPS में कम एट ऑल टाइम लोज, एंड आई थिंक क्रेडिट और देयर बिजनेस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रोबस्ट. साथ में उन्होंने होम लोन और रिटेल में भी बहुत फोकस करना शुरू किया है. तो सम ऑफ द PSUs, particularly स्टेट बैंक, कैन बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, can give you another 50% over the next 1.5 years. सर, फार्मा कंपनीज में आपने ऑलरेडी बताया है, पर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि फार्मा कंपनीज में कौन से स्टॉक्स बेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बोलूंगा कि फार्मा में म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट, क्योंकि इतनी ज्यादा इंडस्ट्री हो गई है, जेनरिक्स, पैथोलॉजी, हेल्थ लैब्स,
So you cannot get a mix of that. The best thing is to buy a pharma fund. SBI Mutual, Nippon Fund, invest कीजिए, do a SIP. You will be richly rewarded. Sometimes it is better to let the fund manager make money rather than trust individually companies which may have one of the issues with FD and so on. तो अभी भी मैं सोचता हूँ the pharma funds will do very well. सर सभी का सवाल आ रहा है, मैं उसका जवाब दे देती हूँ. IIFL स्मॉल केसेस आपको कैसे मिलेंगे? आप हमारी वेबसाइट indiainfoline.com या फिर हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम समय समय पर जब भी नया कोई स्मॉल केस लॉन्च करते हैं तो हम उसको अपडेट करते रहते हैं. तो आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और हमारी वेबसाइट indiainfoline.com को जरूर फॉलो करिए. सर व्हेन विल IIFL लॉन्च फार्मा फंड ETF? No, that I cannot tell. That the asset management will tell, and that will be. But अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, SBI Mutual, SBI Pharma Fund and Nippon Fund. I know the track record. I know the fund managers. I think they are brilliantly run. So it's not that I want business from you, or I'm telling you where you can put your money. So what is your view on Infosys for the next 5 years? No, I cannot chase Infosys from 1100. It's already hitting new highs. So I am not going to chase Infosys. I think HCL Tech and Tech Mahindra, these are two stocks where I can put my money. Sir, is it worth staying with ITC? Definitely. कई साल लगते हैं underperformance के, but ITC is a sum of parts, is a brilliant company. The management has taken on record that their underperformance may be over. You may sooner rather than later hear some news of hiving off of the cigarette business. The other businesses are robust. They have invested for the last 10 years in FMCG. अगर आप 2025 and beyond लगते हैं तो ITC is going to be a huge outperformer. Slow but sure is like a tortoise. लेकिन कंपनी की जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है. However, जैसे आपको कहा, आज मैं ज्यादा बुलिश हूं on Godrej Consumer, on Dabur, on Marico, but I think ITC should still be a part of your portfolio. सर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू है? I think it's journalism at its worst, because without facts to just cast opinions is not easy. I'm not saying for or against, but आजकल आपको पता है सब कुछ is on digital, और कोई भी चीज आप दे दो तो लोग बाग उसको उछल जाते हैं. I think the managements have been very keyed up. They have performed brilliantly, and they are in monopolistic areas. If they are in monopolistic businesses, that's not because of it's not because of anybody's doing it. Is the way it is. So I think the businesses are robust. और ये एक myth थी, but you have to take it with a pinch of salt that these stocks have doubled, tripled, 4 times. So the risk of losing 1 point, even if they fall 50%, आपको चोट लग सकती है. So do your checks and balances, and this is not for the people who are light-hearted. Sir, is it the good time to buy big private banks given that they are overvalued? 100%. I think ICICI Axis is the new realm. ICICI Axis will fit the bill for better performance. I'm very bullish on both these large lenders and State Bank. In the mid caps, I am very sure Bandhan Bank, IDFC First, and RBL, they may even double from here in the next 2 years. Please suggest about Wipro and IDFC First Bank. तो देखिए IDFC First Bank में कुछ दिनों से वीकनेस आई है. मेरे को बहुत क्वेरीज आई, 59 से 54 हो गया 53. ये एक पासिंग स्टॉर्म है. उन्होंने अभी कैपिटल रेज किया था 57 पे, और वो कैपिटल से कुछ सेलिंग आई है बिकॉज ऑफ द ETF आउटफ्लोज. ये टेम्पररी फिनोमिना है. Mr. Vaidyanathan continues to be one of the best bankers I know. As an investor, I have in my family name also my whole family is invested in them from the last 5 years. जब बहुत इसने अंडर परफॉर्म किया है और हम इसे बेचेंगे ही नहीं. तो अगर आपके पास 2 साल का व्यू है तो ये 3 फिगर्स में जरूर जा रहा है. Sir, metals rally seem to lose steam. When will the rally resume? How much rally will you have? 350 वाला टाटा स्टील 1200 हो गया. अगर 1000 रुपए आता है तो आपको तैयार होना चाहिए कि हिंडाल्को जो 150 था 400 गया है तो 300 भी आ सकता है. Metals are a proxy to the dollar. अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, they are a high beta industry, but the fundamentals remain. Metals have never been in such a good space as they are now, and that can remain for some time. So Tata Steel, JSW, Hindalco, and SAIL, these are stocks which you should add on dips. Better is to do a SIP.
how will mid caps and small caps perform in the next 1 to 2 years compared to large caps from here on? तो पहली बात, you must have a balanced book. Large caps are now giving a good book, good opportunity, but mid caps will rule the roost. अगले 2 साल मिड कैप्स को ही बिलोंग करते हैं, बट सारा होल हॉग मत जाइए, बैलेंस करके जाइए. और बैलेंस करने का मतलब ही यही है कि आपको, इसलिए हम जो मॉडल पोर्टफोलियो जो बनाते हैं वहां पे बैलेंस रहता है. 2-4 लार्ज कैप्स, 4-5 मिड कैप्स, अगर बास्केट होएगा तो आपको बेटर उसमें सुख रहेगा. बट मिड कैप्स आर गोइंग टू रूल द रूस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. Sweta, last 2 questions will get later. Sir, everybody wants your remarks to be repeated on Reliance Industries. Unquestionably the best stock with a 5-year view. There is no question. A person who commits and who thinks, वो 130 करोड़ के आदमियों के बारे में सोचता है, तब वो बिजनेस बनाता है. आप और हम तो 10 आदमी, 100 आदमी, 1 लाख आदमी भी सोचते हैं, तो सोचते हैं हमारी लाइफ नहीं. जो आदमी 130 करोड़ का सोचता है वही पैसा बनाएगा. और अगर वो अब जो चेन बता रहा है ग्रीन एंड, these are small investments. उसका जो जियो प्लेटफॉर्म है, उनका जो डिजिटल है, टेक्नोलॉजी है, रिटेल, सम ऑफ पार्ट्स रिलायंस में शिफ्ट करिए, होल हार्टेड मत जाइए. यहाँ से 10% करेक्शन भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर आप 2-3 साल रखते हैं तो 3,000-3,200 का भाव भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. सर, लास्ट क्वेश्चन, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे आपका व्यू. So LIC हाउसिंग में देखिए, अभी they have raised money at 512 from their parent, that is LIC. The quarter was weak, but that's the last. After HDFC, they have one of the best mortgage books. And let me also tell you कि जो NIMs नीचे आती थी 2.7, 2.8, वो अब traction on the upside है. 450 is a very good floor price. I think 700 in the next year is very much on the cards on LIC housing. So, thank you Sanjeev sir, and for all the attendees. अगर आपके और मैं सारे questions, क्योंकि given the time constraint we cannot take all the questions, you can reach out to Sanjeev sir or IIFL Securities on our social media handles, and we'll make sure that we reply to all your queries. Thank you for attending this session. Next month we will again have a session, exclusive session with Mr. Sanjeev Bhasin. Thank you everyone.